What if I told you that export is not just about goods export from India anymore? It's honestly about service exports and its growth. From last 2 decades, if you say, around 2005, it was around $50 billion that we were exporting. Right from there till today, around 11 to 12% we have grown consistently. We are always on top 3 when it comes to service exports in terms of growth, in terms of volume. आज की डेट में अगर आप देखते हैं 2024-25 का जो अभी डेटा आएगा, $380 बिलियन के आसपास का सर्विस एक्सपोर्ट होगा. तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ बिग दिस इंडस्ट्री इज. गवर्नमेंट के क्या रोल्स है, क्या सब्सिडीज है, क्या सपोर्ट है, व्हाट ऑल सर्विसेज आर गेटिंग एक्सपोर्टेड, कहाँ पे वी कैन स्टार्ट विद सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, कौन से नेशन में ज्यादातर सर्विसेज ली जा रही है इंडियंस की. दिस इज ऑल वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड. फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड हाउ सर्विस एक्सपोर्ट इज द बैकबोन ऑफ इंडिया. अगर 750-800 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हो रहा है तो 40% प्लस का एक्सपोर्ट जस्ट सर्विसेज से आ रहा है. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट ऑल सर्विसेज आर गेटिंग एक्सपोर्टेड इन जनरल. सो लेट्स से अगर 100% एक्सपोर्ट सर्विसेज का है तो उसमें 50% एक्सपोर्ट बस आईटी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज है. इसमें इफ यू सी टीसीएस, सॉफ्टवेयर, इन्फोसिस, विप्रो, दीज आर द कंपनीज व्हिच आर मेजरली going ahead with this. Zoho is one of a good example wherein you can also start a company with a simple programming language and grow it big. ये हो गया मेजर 50%. इसके बाद 25% if you see is coming from business consultancy services, legal, IT, आपके CA services are going ahead in this. These are the service that are contributing around 25%. We can talk about the tourism part that is also contributing around 10 to 11% and then other services. And let's talk about कौन सी services as a exporter आप start कर सकते हैं. अब बहुत basic services से start कर सकते हैं. We'll divide it into multiple categories. Let's say you are an accounting student or a CA student. You might be a designing or a graphic student. You might be into social media designing, marketing and everything. You can be into SEO part. Or you can be into your website building, mobile application building, UI UX. These are just common things जो आप freelancing way में या आप 2-3 लोगों की टीम के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो with a minimal capital. Let's say आप स्टार्ट करते हो UI UX. सिंपल है, UI UX मतलब डिजाइनिंग ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेबसाइट्स. वेरी गुड सर्विस. ये सब जितनी भी सर्विस मैं बोल रहा हूँ, ये वो वाली सर्विसेज है जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल स्टार्ट कर सकता है घर बैठ के. यहाँ पे मेजर इन्वेस्टमेंट आपका एक कंप्यूटर या 2 कंप्यूटर्स में आएंगे एंड स्किल सेट में मेजर इन्वेस्टमेंट है. ये सर्विसेज है जो एक नॉर्मल इंडियन स्टार्ट कर सकता है विद अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल. वन ऑफ द की रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन सर्विस एक्सपोर्ट वाज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट. अराउंड 1800 आर देयर इन इंडिया राइट नाउ. What these centers do is they make it easier as well as cost effective for MNCs to hire talent, make those small townships wherein it's easy to grow in terms of export. Bangalore, Hyderabad, Mumbai, all these major cities as well as smaller towns have these centers जहाँ पे मेजरली पूरा एक्सपोर्ट के हिसाब से सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है. गवर्नमेंट के इसके अलावा भी और इनिशिएटिव्स है. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया टू मेक दोस बिग प्लेसेस जहाँ पे एक्सपोर्ट के हिसाब से सर्विसेज आए. डिजिटल इंटर्नशिप प्रोग्राम, PhD program, these are the things which are made for youth so that they can grow as well as with the government subsidy involved in the PhD part. For internship program, they are helping to connect the companies with the new students. What are the main countries जहाँ पे इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट कर रही है? If you see in general, 70 to 75% is concentrated with US and Europe. 50% is US. इंडिया के लिए US बहुत इंपॉर्टेंट है in terms of market and Europe. Europe is contributing around 15-20% each year. इसके अलावा अभी आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया is a very good market which is growing and is Asia specifically complete Asia. ये हमने समझा कि गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स है, कौन से एरियाज में एक्सपोर्ट हो रहा है, कौन सी सर्विसेज है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं. अगर आप सिंपली देखें अभी एज अ फ्रीलांसर, इफ यू वांट टू स्टार्ट, आई विल सजेस्ट यू फ्री बेसिक वेबसाइट्स, freelancers.com, Upwork एंड Fiverr. मतलब ये सर्विसेज मैंने खुद अपनी कंपनी के लिए दूसरे फ्रीलांसर से लिए एंड दीज आर नॉट जस्ट इंडियन कंपनीज, दीज आर ग्लोबल कंपनीज जब पूरी दुनिया में ये वर्क करती है. You can also focus on your LinkedIn growth. इसके अलावा Insta is also a good medium if you are very good at content creation. These are major resources जहाँ से आप start कर सकते हैं अपनी journey.
अ वेरी गुड वे टू मेक मनी। एंड आप इसमें अगर आप नॉर्मल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट से अगर कंपेयर करते हैं, व्हाट आई वांट टू सजेस्ट इज इन्वेस्टमेंट वाइज 1/10 होता है। सेकेंडली पेमेंट्स का इसमें कोई इतना इश्यूज नहीं रहता, जैसे आपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर दिया, पेमेंट के लिए वेट करना है। बट सर्विसेज में ऐसा नहीं है, आपने सर्विस के पहले भी आप एडवांस ले सकते हैं, सर्विस के थ्रू आउट आप पार्ट्स में ले सकते हैं। अगर सामने वाला पेमेंट नहीं करता तो आप वेबसाइट या जो भी आर्ट वर्क है यू कैन स्टॉप इट राइट देयर एंड देयर। तो कहीं ना कहीं आपका जो पेमेंट स्ट्रक्चर है वो इजी है। थर्डली द मार्जिन्स आर वेरी ह्यूज। इफ यू सी कंपेयर टू प्रोडक्ट्स जिसमें रेंजिंग 5 to 15% चलता है ऑन एवरेज, यहाँ 40-50% तक की मार्जिन चलती है। तो इंडिया के लिए भी एंड पर्सनली बोथ द साइड्स इफ आई सी सर्विस एक्सपोर्ट इज द की फॉर नेक्स्ट 5 to 10 years जहां पे इंडिया ग्रो करेगी। यू शुड लर्न AI इज नॉट समथिंग जो आपकी जॉब को हार्म करेगा, बट इट विल ईज आउट योर वर्क। आप वेबसाइट UI डिजाइनिंग ये सब में अगर यूज करना स्टार्ट करते हैं, आप एक की जगह 5 प्रोजेक्ट्स उठा सकते हैं, क्योंकि इतना सिंपल हो चुका है, बट सबको यूज करते अभी भी नहीं आता। सो थैंक यू, दिस इज अ सर्विस वीडियो। इसके अलावा भी और वीडियोस आते रहेंगे। वी आर प्लानिंग टू मेक अ वर्कशॉप ऑन सर्विस एक्सपोर्ट। कोई एक प्रॉपर सर्विस एक्सपोर्टर को लाते हैं ऑन बोर्ड, ही विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन डेप्थ कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्या मार्जिन रहेंगे आपकी, डॉक्यूमेंटेशन, पेमेंट्स, हाउ टू गेट योर पेमेंट्स, securing your payments. We'll do a complete workshop on this. So probably by April we'll be doing it. You can download the India Port application जहाँ पे एक छोटी छोटी वर्कशॉप चलती रहती है related to export import, be it funding, financing, learning about documentation, marketing and everything. Thank you so much. Have a great day.